Okay, good morning to all of you, and as usual, welcome back. And I hope today there is no glitch that we had yesterday. Yesterday we had a problem regarding login Zoom का. वैसे ये सारे क्लासेस में हुए थे yesterday. बाकी क्लासेस में भी मैसेजेस आ रहे थे. कभी-कभी टेक्नोलॉजी साथ नहीं देता है. वैसे इतना दिन साथ दिया है उसके लिए भी we should be thankful, है ना? Messages some are on the pipeline still. चलो, Garv, good morning. Let's start the discussion. I think we were discussing on force being conservative, non-conservative, and so on. Today we will be discussing on leaving a surface. If you remember, when we were discussing that vertical circle, we had a situation where surface was, or rather the circle was, left by the particle. Now, we had to calculate where will it leave the circle, what will be the velocity at that time, and all those stuff that we have done. Today we will be doing something similar. Okay, na? There is a question from Dhruv Gupta, and that is, कल का paper कैसे था mains का? Actually, it's very, very difficult to analyze really, unless you have a copy of the paper. But as per reports, maths was a little tough. So that's the report. That's the initial report. अभी तक तो यही बोल रहे हैं कि maths ही tough था ज़्यादा. बाकी तो और कुछ कह नहीं रहे. बाकी, I mean, कई सारे papers होंगे तो I think that will be a better way to analyze. कि हो सकता है किसी एक पेपर में मैथ्स का टफ रहा हो, किसी और पेपर में कुछ और होगा. How do you know? है ना? चलो, so like let's begin with the question. Let's call it as a warm up kind of a question, and that is, let us say this is a cylindrical surface. This is fixed. This is fixed. On top of it, a particle has been kept. This is like a radius r. On top of it, a particle has been kept. It has been just started. Just started. Just started means what? As it just started. तो देखना ये यहाँ से ऐसे करके कुछ टाइम तक या कुछ एंगल तक रहेंगे. So question is, at what angle will it leave the surface? यानी वो जो सर्कुलर वाला सरफेस है, सिलेंडर का सरफेस है, वहां से स्टार्ट किया, चलते 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 देखना एक स्टेज पे आके वो सरफेस को छोड़ के वो जमीन पे गिर जाएंगे. क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल इज दैट सपोज्ड टू हैपन? Yeah, I have some quick answers because many of you have done it already. That's why we got a quick answers from Dhruv Sharma, Aryan Jain, Dev. They've given some quick answers. Good. Dev has said कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभ्यास के लिए 5-6 क्वेश्चंस चेप दिया पेपर में. I don't know what you are meaning to say. I mean, Ohm says a sophisticated language of arc cos inverse. Dhruv Gupta says tan inverse 2 by 3. नहीं, tan inverse नहीं आएगा, cos inverse आएगा. और cos inverse का ही mainly आंसर आ रहा है. Dhruv Sharma, Aryant, Dev, Om. Even now Dhruv Gupta has also accepted कि हाँ ये cos inverse ही होगा. चलो, let's set the ball rolling. There are two aspects of it. One is that it must leave the surface. So therefore, at any angle, अगर मान लो n theta चाहिए, theta है suppose, तो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है मान लो, तो ये यहाँ पे ऐसे करके v इसका वेलोसिटी है, let's say टेंजेंशियल. In that case क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप कितना होगा? अगर मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूँ और अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे पोटेंशियल mgr और यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा
प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, mgr cos थीटा, this one, plus half mv square. So therefore you get v is equal to under root of 2gr into 1 minus cos थीटा. तो अगर मान लो यहाँ पे मैं फोर्स बैलेंसिंग करता हूं, तो ये अगर मान लो सपोज mg cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा n थीटा, मींस नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द सिचुएशन इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है ना. तो इन दैट केस क्या होगा ना, n थीटा माइनस mg cos थीटा, सॉरी उल्टा, mg cos थीटा minus n theta is equal to mv square by r. So which is will be equal to v square हो जाएगा 2gr into r करके, तो यानी 2mg into 1 minus cos theta, तो वो उधर आ जाएगा, तो n theta हो गया इक्वल टू 2mg cos theta minus 3mg cos theta, 3mg cos theta minus 2mg. And when does the object leave the surface? So obviously it will leave the surface when normal action is equal to 0. So n theta is equal to 0 implies cos theta is equal to 2. Okay. So the angle at which it is going to leave the surface is theta is equal to cos inverse 2/3. Please check. Yeah, cos inverse 2/3. और भी बहुत लोगों ने आंसर दिया है. देहम, ओम, ध्रुव गुप्ता ने बाद में भी आंसर चेंज कर लिया. चलो गुड. Okay, so that was some kind of a warm up question. हमें now let me change the question a bit. Suppose I say that this surface, suppose I say, now I am changing the premise. Suppose I say that this surface, taking the particles at the top, suppose I say that this surface is now accelerated by a on this side. ठीक है, तो ऐसे केस में, fine, ऐसे केस में what will be the normal action, or when will it leave the surface? Again, find out theta, or rather find out the variation. Nimisha is having a problem with it today. बार-बार एंट्रीज आ रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा. क्या निकालना है? Same question. Find out the normal action variation with angle theta maybe. To start off with, find out the normal action variation with angle theta. That could be the first question. Dhruv Gupta, please repeat the question. कुछ नहीं, मतलब just study what will happen, let's say at an angle theta. Maybe you can find out the normal action, you can find out the velocity of the particle, tangential velocity of the particle with respect to the sphere or cylinder or whatever. ठीक है ना, curve हमें, ठीक है, curve of radius r obviously. Now, there I asked a question, that is, sir, हमने ground frame में
रेस्ट से लीव करा है क्या? देखो, इफ इट इज लीविंग द सरफेस देन इट विल लीव द सरफेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग फ्रेम आल्सो, ठीक है ना? क्योंकि लीविंग द सरफेस का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन हैज टू बी सीन, isn't it? So that's the premise. सर मैं पूछ रहा हूँ जब वो इनिशियली रिलीज करा है तो उसकी वेलोसिटी जो 0 है वो Everything has started from zero. Everything has started from zero. Okay. Now I got your point. Everything has started from zero. सब कुछ जीरो से ही स्टार्ट हुआ. Okay, I've drawn the two forces. I mean that I am going to see. If I'm the observer, let's say here, I'm sorry, not two, three forces that I'm going to see. One is mg और उसके components mg cos theta sin theta. One is ma और उसके component ma cos theta और ma sin theta. And the other is normal action. These are the forces that I'm going to see. तो मैंने इसलिए जानबूझ के क्या किया, रेडियली और टेंजेंशियली कंपोनेंट कर दिया. अब बोलो क्यों? क्योंकि रेडियली मैं जब देखूंगा तो रेडियली मुझे कोई वर्क डन नजर नहीं आया. रीजन बीइंग दैट मैं कैसे देख रहा हूं ना, इसको टेंजेंशियली जाते हुए. आई एम टेकिंग दिस एज ऑब्जर्वर. तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको टेंजेंशियली जाते हुए देख रहा हूं. तो देयरफॉर वर्क डन बोलते कौन कर रहा है ना, वर्क डन बोलते इस बार स्यूडो फोर्स का भी कंपोनेंट करेंगे. If you remember long back when we started the discussion on work energy theorem, so there was a question towards the fag end of one class कि work energy में फिर क्या pseudo force नहीं लेना होता है. If you remember I told कि pseudo force का भी लेना होता है, but इस वक्त जो हम लोग situations discuss कर रहे हैं उसमें वो सब आने वाला नहीं है. But when it will come, we will definitely discuss. जैसे आज हम लोग discuss कर रहे हैं, pseudo force का भी इस केस में work done हम लेंगे. Reason being that pseudo force becomes a genuine force for a person who is here. For him, this is a genuine force. Actually, pseudo force is not a force at all. I agree. But the thing is that for this person, pseudo force is a genuine force. So therefore, for this person, these will be the forces. और अगर जानना चाहते हो velocity वगैरह, तो मान लो अगर तुम जानना चाहते हो velocity at any time, VMA, तो then we can use work energy theorem. Work energy theorem क्या कहता है? The work energy theorem कहता है कि इसका work done निकाल, यानी mg
साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा का 0 से थीटा। आई मीन लिमिट्स आल्सो कैन बी थीटा, नो हार्म, ठीक है ना। और दैट्स इट, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। इज इक्वल टू, रेस्ट तो आई थिंक अब तो ओके हो गया, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा का वर्क डन क्या होगा ना, कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा, तो माइनस एम जी कॉस थीटा 0 टू प्लस एम ए साइन थीटा 0 टू थीटा इंटू आर, दिस इज द वर्क डन, इज इक्वल टू एम जी आर, अगर मैं कॉमन लेता हूं, एम इंटू आर अगर मैं कॉमन लेता हूं, ये आ जाएगा एम इंटू आर कॉमन ले तो ए साइन थीटा, ये -1 हो जाएगा तो +1 प्लस जी माइनस जी कॉस थीटा, दैट इज द वर्क डन, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स, ठीक है। यानी v कितना आ गया, v हो जाएगा इक्वल टू m, तो चलो कैंसिल कर देंगे हम, अंडर रूट ऑफ 2r इंटू g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ठीक है। I got some answers. Som has done it. Few others also have done it. Shri, Harshit, Dhruv, कईयों का आंसर दिख रहा है मुझे, ठीक है। I think now you can do it. तो ये हो गया velocity as observed by this person, ठीक है, relative to the frame. So यानी it's an example where we are using or we are supposed to consider the work done by pseudo force also. That is the critical point. Fine. चलो, let's get along now. बाकी तो अब खुद ही समझ में आ गया होगा कैसे करना है। That was the इसको बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते थे ना, कौन सा, इसको वेलोसिटी को किस तरीके से निकालोगे? बिना इंटीग्रेशन के? नहीं, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना सर। अगर तुम फोर्स को लेके भी करोगे तो भी इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। तो मेरा तो सेम आंसर है, मैंने नहीं करा इंटीग्रेशन। तुमने क्या किया? मैंने तो एनर्जी कंजर्व करा था सिंपल। हाँ, तो तुमने वो किया होगा ना कि क्योंकि एमए का जो वो है क्या बोलते हैं, सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेके एमए क्या हाँ बोलते हैं, हाँ सर वही चलेगा, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, चलेगा, ठीक है। चलो, let's proceed now. Today we will discuss about one more concept or rather a new concept, and that is on power. अब पावर का क्या कंसेप्ट है? देखो, पावर का जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ऐसा अगर इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो तो क्या आता है ना, P इज इक्वल टू dW dt, P इज इक्वल टू dW dt, ठीक है। अगर मान लो यूनिफॉर्म है, इफ यूनिफॉर्म, तो देन पावर कैन आल्सो बी रिटन एज W by T, ठीक है, सिंपल। अगर एवरेज पावर निकालना है, दैट इज आल्सो W by T,
ठीक है, और अगर WT का ग्राफ ड्रॉ किया जाए whatever, then it is what? Slope of the diagram. And so on. So therefore, पावर का एसेंशियली डेफिनेशन यही है, लेकिन इसके अलग अलग पहलू हो सकता है, एवरेज निकालना हो या इंस्टेंटेनियस निकालना हो, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो इन दैट केस किसी भी पॉइंट पे स्लोप भी पावर का एक्सप्रेशन दे सकते, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या है, क्योंकि पावर होता है dW by dt और dW इज नथिंग बट F डॉट ds अपॉन dt, तो इसको मैं लिख सकता हूं F डॉट ds by dt, ठीक है ना, ds by dt, and ds by dt is nothing but what? Velocity. So therefore power can also be written as F dot v. So when I say this, it is instantaneous power. तो ये तमाम चीजें अवेलेबल है हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, एंड दैट इज, एक वाटरफॉल है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, और मान लो यहाँ पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक कुछ सेटअप बना दिया मैंने, ठीक है ना, व्हाटएवर, टरबाइन ऑरबाइन लगा के, so it's a हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेटअप, और इसका एफिशिएंसी का इज सपोज 15%, ठीक है, ईटा इज 15%, ईटा को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। इसका हाइट दे रखा है 80 मीटर्स, ठीक है, हाइट दे रखा है 80 मीटर्स। If let's say power produced, if power output is suppose equal to 60 megawatt, find the rate at which water is falling in the water. चलो, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी निपटाओ। And power output is also given 60 megawatt. Dhruv Sharma has already given an answer, and that is 5 into 10 to the power 5. Om Pathak 5 into 10 to the power 4. Dhruv Gupta 500. यानी 5 तो सबका सेम आ रहा है, पावर सबका अलग अलग आ रहा है। हर्षित लोहानी 5 into 10 to the power 5. Okay. Sania 5 into 10 to the power 5. Now 5 into 10 to the power 5 has started dominating. Jasraj 5 into 10 to the power 4. Sneha has also given 5 into 10 to the power 5. Dhruv Gupta 5 into the power 5. Sagarika 5 into the power 5. चलो ठीक है, let me work it out. पहली बात तो let us say the rate at which the water is falling is suppose m dot. So let us say m dot is the rate of water fall. Means mass per unit second. I mean that is per second. इसके वजह से पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा और वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो कितना होगा, into g into h, that is 80 meters.
लेकिन ये जो एनर्जी अवेलेबल है मेरे पास पर सेकेंड, उसका सिर्फ 15% ही कन्वर्ट हो पाता है. दैट्स व्हाट इज द एफिशिएंसी गिवन इन द क्वेश्चन. इनटू 15/100, दैट्स इट. और उससे क्या हो रहा है, पावर आउटपुट कितना आ रहा है ना, 60 मेगावाट. So that is equal to 60 into 10 to the power 6. So therefore you have m dot is equal to, तो I think कैलकुलेशन ही रह गया बस. तो 15 ये 4 हो गया और ये 8 का 2 हो गया, हाफ into 10 to the power 6 is equal to 5 into 10 to the power 5 kg per second. Very simple question. 5 into 10 to the power 5 kg per second is the answer. Okay, and most of you have given that only. कुछ लोगों के थोड़ा सा पावर का गड़बड़ हुआ था, तो मे बी some calculation mistake. So it's too easy a question. I don't think there is much into it that you will make a mistake. I mean, है ना? ठीक है, बाद में ऑलमोस्ट सब लोगों ने करेक्ट आंसर ही दिया. ऋषभ, अंश, श्रेयसी. ओके, ध्रुव सेज कि मैंने पहले गलती से मेगावाट की जगह किलोवाट लिया. चल, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, so let's move on now. Next question is that suppose मैं क्या करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल एक धागा है, सेंटर पे बाउंड है और एक स्मॉल पार्टिकल है m. ठीक है, it is suppose pushed tangentially. It's a thread, it's of mass m. तो इसको टेंजेंशियली पुश किया जा रहा है. A continuous tangential force is provided. Continuous tangential force is provided. ठीक है, a continuous tangential force is provided such that P is maintained constant. You to draw the graph of tension versus theta. Sorry, tension versus T. Draw the graph of T versus T. T मतलब कैपिटल T मतलब टेंशन, स्मॉल t मतलब हो गया टाइम. Go ahead. Yes, P is power. Power is maintained constant. P is power, बिल्कुल सही. So मैं ask this question, what is P? P is power.
as you won't be able to draw the graph, or rather show it to me, at least in Zoom, maybe you can show by WhatsApping or something like that. So what you can do is that you can just give me the nature, that maybe tension varies as something to the power, whatever. At least nature of variation पता चल सकता है ना? So at least that much you can do, है ना? So what I do is that in the meanwhile, I'm also working it out. You also work on your own. Then maybe we can tally after some time. Okay. Your relationship check कर लो. Sania has given the right answer, and that is that the graph will be a linear graph. ठीक है, एकदम सही आंसर दिया है. Linear graph होगा. कैसे linear आ रहा है? अब वो देखो. Power constant maintain किया गया. ध्यान रखना. Power is maintained constant, so that is force into velocity is equal to constant. But यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना. हम force बोलते कौन से force की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे tangential force की बात कर रहे हैं. क्योंकि एक्चुअली ना एक force radial भी आएगा. इनफैक्ट मैं उसी का पूछा हूं. ये रेडियल वाला जो है ये कोई वर्क डन नहीं करता. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल हो रहा है, और ये जो टेंशन है ये तो हमेशा रेडियल फोर्स दे रहा है. तो देयरफॉर रेडियल फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन के वर्क डन में पार्टिसिपेट नहीं करता. सो देयरफॉर आप म्यूट हो. कॉल आ गया. चलो, तो लाइक रेडियल फोर्स वर्क डन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. इट्स ओनली द टेंजेंशियल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल. दैट्स इट. तो क्योंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है तो देयरफॉर फोर्स हो जाएगा P by V, और FT मतलब M into AT, तो AT क्या होगा ना P by MV, है ना. एंड आफ्टर दैट तो आई थिंक आसान है ना. सो AT कैन बी रिटन एज dV by dt, that is P by MV. तो V इधर लेके आया तो इंटीग्रेशन किया 0 से V, और इधर P by M into T. ठीक है ना, P by M into T.
तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू करके आ गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p, ये t भी अंडर रूट के अंदर है ना। और उसके बाद क्या करना है, t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो v स्क्वायर हो गया 2pt बाय m, तो 2pt बाय m था तो mm कैंसिल हो गया, r हो गया, तो देयरफॉर t इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी अच्छा आज इसका वेरिएशन कांस्टेंट आ रहा है, कल को हो सकता है कि पावर कैन इटसेल्फ बी सम फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन कर लो, सपोज आई से दैट पावर इज नॉट कांस्टेंट बट पावर इज इक्वल टू सम kt स्क्वायर। नाउ डू द सेम क्वेश्चन, तो थोड़ा सा चेंज करोगे, ज्यादा चेंज तो है नहीं। ये जो p जो कांस्टेंट लिखा था अब ये चेंज हो जाएगा टू p इज इक्वल टू kt स्क्वायर, तो ft क्या हो जाएगा, p बाई v और अदर kt स्क्वायर बाई v, और इसको लिख लूंगा एज at इज इक्वल टू हो जाएगा at स्क्वायर बाई mv, ठीक है, तो dvdt आ जाएगा kt स्क्वायर बाई mv। तो v dv इज इक्वल टू kt स्क्वायर dt, k बाई m t स्क्वायर, v स्क्वायर बाई 2 t क्यूब बाई 3, so that is equal to kt क्यूब बाई 3m, और v हो जाएगा फिर अंडर रूट ऑफ 2 बाई 3 kt क्यूब, 2 बाई 3 2 by 3 kt क्यूब बाई m, दैट्स इट। तो t हो जाएगा फिर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, t विल बी mv स्क्वायर बाई r, यानी इक्वल टू mm कैंसिल हो गया बाई r, तो 2 kt क्यूब बाई 3r, यानी ग्राफ फिर अलग हो जाएगा, t क्यूब का हो जाएगा now t is proportional to, that's it. So you are right, देहम ने भी सही आंसर दे दिया, दैट इज इस बार वेरिएशन t क्यूब का आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना, 2 by 3 kt क्यूब बाई r, भैया, and so on. So like now you can have any type of question, I mean, based on what kind of function the power is following, if the power is on the increasing side, decreasing side, or whatever it is, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो like go to the next question now. ये वर्सेस टाइम का ग्राफ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर बराबर होगा, when will the instantaneous power and the average power be the same, that's the question, go ahead. This is also an easy question, it's more of mathematics than physics. ये ग्राफ बनाओ, ये सर्कल का पार्ट है, क्वार्टर सर्कल है, तो दिस इज अ क्वार्टर सर्कल एक्चुअली, ये गिवन है, दिस शेप इज अ सर्कल, मींस पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये गिवन है। You just find out the moment or the time or the point at which the average power will be equal to instantaneous power, that's it.
There could be other graphs also, just one sample graph. Yes, any progress? So step number 1 is that average power कैसे निकलेगा ना, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, तो 1 हो जाएगा इस केस में। क्यों? ये तो क्वार्टर सर्कल है, यानी इसका भी लेंथ टी नॉट टाइम के बराबर है, दैट्स द बेनिफिट। तो देयरफॉर ये हो गया एवरेज पावर का स्लोप, दिस विल बी 45 डिग्री, so that's the big advantage, यानी पावर एवरेज इज इक्वल टू 1 यूनिट। कोई यूनिट वगैरह दिया नहीं तो इसलिए 1 यूनिट करके मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली इट इज दिस बाय दिस, तो क्योंकि ये सर्कल है तो देखो इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो 45 डिग्री, फाइन। चलो अब ये कि किस टाइम पे ये स्लोप 45 डिग्री होगा, मतलब स्लोप इन द सेंस कि एंगल 45 डिग्री, तो कहीं ना कहीं तो होगा ना 45 डिग्री। नाउ दिस इज वेयर इट विल बिकम 45 डिग्री। This is 45 degree, and we know that this is 90 degree, so this also has to be 45 degree, and this also has to be 45 degree. तो रेडियस तो टी नॉट है, तो ये भी टी नॉट होगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा इस केस में टी नॉट बाय रूट। आई होप यू आर गेटिंग द ज्योमेट्री राइट, ठीक है ना। तो टी नॉट बाय रूट, देव से इसकी मेरा तो टाइम नेगेटिव आ गया। नहीं नेगेटिव तो नहीं आ गया। देखो इनफैक्ट पता है क्या हो रहा है, अगर मान लो पावर का एक्सप्रेशन देखोगे तो इनिशियल पावर इनफाइनाइट है। क्यों? ये देखो ना, सर्कल अगर बोल रहे थे यानी यहाँ पे तो ऐसे होगा, फिर वहां पे ऐसे होगा, तो अगर एक सर्कल देखते हो तो यहाँ पे तो टेंजेंट वर्टिकल होता है और यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, यानी इस पॉइंट पे तो स्लोप इनफाइनाइट है और इस पॉइंट पे स्लोप 0, और कहीं ना कहीं स्लोप 45 डिग्री होगा, यानी 1 होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना वो 45 डिग्री। तो मैं वही कर रहा था, तो ये सेंटर हो गया, ये हो गया सेंटर, ये मैंने पहले बोला था एक क्वार्टर सर्कल है, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पे 45 डिग्री चाहिए, तो ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री, और ये 45 चाहिए तो ये भी 45 होगा, तो देयरफॉर ये 45 45, तो आई थिंक आगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज। अगर ये टी नॉट हुआ, क्योंकि रेडियस टी नॉट है, तो यही टी नॉट यहाँ पे होगा टी नॉट, तो ये कितना होगा टी नॉट बाई रूट 2, यानी आंसर क्या आ गया, T इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी नॉट बाई रूट, यानी टी नॉट बाई रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1, ये हो गया टाइम। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें फायदा ये मिल गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इज दैट कि 45 डिग्री का फायदा हो गया। कल को हो सकता है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट क्वेश्चन विल ऑलवेज बी दिस इजी, दैट मे नॉट बी द स्टोरी ऑल द टाइम, but yes, at least for this particular question, why not use the fact that it is having a very easy geometry, कुछ फायदा तो है। टी नॉट माइनस टी नॉट बाई रूट 2 कैसा है? नहीं ये सेंटर है, ये टी नॉट हो गया, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, तो इसी पॉइंट पे है ना स्लोप 1, तो ये अगर टी नॉट होता है ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा टी नॉट cos 45 which is 1 by root 2, तो ये नहीं, ये अगर टी नॉट होता है कि ये सर्कल का रेडियस है, ये पूरा टी नॉट है, पूरा रेडियस टी नॉट है, तो ये टी नॉट हो गया, ये टी नॉट बाई रूट 2, ठीक है ना। और हमें तो टाइम चाहिए यहाँ से, तो टी नॉट बाई टी नॉट माइनस टी नॉट बाई रूट 2 कर दिए, टी नॉट बाई रूट 2 है, तो बाकी हमारा टाइम तो 0 से स्टार्ट होगा, तो इस टाइम पे क्या होगा, स्लोप 1 हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इज दैट कंफर्टेबल नाउ? देख लो, यस सर। चलो ठीक है।
See, what I'm trying to say is that हर क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं होगा. क्यों? ये देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या फायदा हो गया? क्वार्टर सर्कल था ये, तो इसका स्लोप जो एवरेज पावर आ गया ना वो 45 डिग्री के हिसाब से 1 आ गया. अगर ये क्वार्टर सर्कल नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर इन दैट केस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता. तरीका यही होता बट थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता. ठीक है, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंगली. प्लस एक और फायदा भी हुआ कि सर्कल था. कल को अगर पैराबोला होगा तो थोड़ा सा और कैलकुलेशंस बढ़ेंगे. सी व्हाट वी आर डूइंग इज गिविंग ए थीम कि अब इस थीम पे ऊपर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही है ना बहुत ज्यादा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज आई से दैट देयर इज अ स्प्रिंग एंड अ मास. अब कोलिजन वोलिजन सब इंक्लूड कर, इसका मास m, ठीक है, और एक और m मास, ठीक है ना, एक और m मास मैंने कुछ हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया. There is a perfectly inelastic collision hits and sticks. तो क्वेश्चन ये है कि what will be the point till which it will go. ठीक है, तो यानी फाइंड स्मॉल h. अब कैपिटल H क्या दिया हुआ है? कैपिटल H दिया हुआ है कैपिटल H दिया हुआ है 2mg by q. That is given. ठीक है, I think it's okay. Question is what will be the compression of the spring from the sponge. यानी एक स्प्रिंग मास सिस्टम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऊपर से एक मास को हमने गिरा दिया तो वो उसको टकराया, और फिर हिट्स एंड स्टिक्स वाला केस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो इकट्ठे दब गए स्प्रिंग, तो नीचे तक जाएंगे फिर वापस आएंगे. दैट्स द सेकंड स्टेज. बट आई एम ओनली बॉदर्ड विद द फर्स्ट स्टेज एंड दैट इज व्हाट आफ्टर कोलिजन दिस कम्स टू इट्स बॉटम मोस्ट पॉइंट. उसके बाद ऊपर जाएंगे एंड ऑल. ठीक है, लेट इट गो, आई डोंट माइंड. दिस इज द पॉइंट दैट यू टू फाइंड आउट. ठीक है, गो अहेड. नथिंग वेरी डिफिकल्ट रियली, यू कैन इजीली डू इट. स्टार्ट करो. देव, पिछले क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव कैसे आ गया था? मतलब व्हाट वाज द मिस्टेक? यू हैड रिटन अ कमेंट कि मेरा टाइम नेगेटिव आ गया. Yes, Devrat Tevatia, I've asked a question. If you are hearing. अच्छा, ज्यादा गलती हो गया था. चलो कोई बात. वैसे अभी तुमने तो लिखा ही वाला चीज, बट इन जनरल इसका तरीका पता है क्या है? सर्कल का इक्वेशन से इन जनरल तरीका ही. बट ये जो 45 डिग्री था ना, मैंने उसका फायदा उठाया, और कोई बात. चलो go ahead and find out the value of small h. सोमेश की सर्कल के इक्वेशन से भी एक बार बता दो. अच्छा, सर्कल के इक्वेशन से पता क्या करना पड़ेगा ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना पड़ेगा पहले, और फिर उस इक्वेशन से dy dx निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे एज इक्वल टू 1, फिर उससे y या x का वैल्यू देखना आ जाएगा सॉल्व करके ऑब्वियसली. पर उसके लिए प्रीकंडीशन ये है कि तुमको सर्कल की इक्वेशन लिखना पड़ेगा.
तो सर्कल का इक्वेशन भी लिखना कोई ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। चलो मैं एटलीस्ट सर्कल का इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या बनेगा पिछले केस में मैं सिर्फ सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूँ y और x के टर्म्स में। y मतलब यहाँ पे w और x मतलब t है, ठीक है ना। लेट अस से कोई जनरल w और t ले लेता हूँ। ये हो गया t नॉट कॉमा 0 एज पर टी क्वेश्चन गिवन जो फैक्ट्स थे, ठीक है ना। तो दिस इज अ फंक्शन। कैसा है सेट ना, अगर तुम फंक्शन से चलोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ये w आया, फिर इसके बाद वो आएगा। एक्चुअली यहाँ पे टेक w एज y एंड t एज x। तो जैसे x और y का इक्वेशन आता है ना, सर्कल, पैराबोला, दिस दैट करके बड़े सारे इक्वेशंस आते हैं, तो वैसे यहाँ पे मैंने w और t का इक्वेशन करना है। तो कोई अलग कुछ नहीं है, y को w समझ लो और t को x समझ लो। तो आई थिंक दैट्स इजी जॉब। तो मैंने क्या किया, कोई भी पॉइंट ले लिया, एक रैंडम पॉइंट w, t। ओ मैंने एक गलती भी किया, ये w, t है, t, w होगा, पर चलो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो t, w, तो ये वाला हो जाएगा यहां से लेके यहां तक t नॉट है, t, तो ये क्या होगा t नॉट माइनस टी, और ये क्या है w। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू t नॉट इटसेल्फ। तो क्वेश्चन के फैक्ट्स है, इसलिए मैंने उसको यूज किया। तो ये हो गया सर्कल का इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल। उससे क्या हुआ, w यानी y आ गया इन टर्म्स ऑफ x, यानी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो w इन टर्म्स ऑफ t आ गया। अब हम dw dt निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 1। dw dt को इक्वेट करेंगे एज 1, तो देखना t का वैल्यू सॉल्व हो क्या आता है, एंड देन वी प्रोसीड अकॉर्डिंग। तो थोड़ा लंबा मेथड है, बट चलो ठीक है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। जस्ट दैट यू आर सेइंग कि एक बार वो भी बता दो, तो बता दिया। नॉट दैट इट इज ऑफ माय चॉइस हमें, बट ठीक है, चलेगा। चलो तो लेट्स प्रोसीड नाउ। ये वाला क्वेश्चन आप करते हैं। आई थिंक पहली बात तो, if it is coming down by a height of 2 mg by k, then the potential energy mgh, h is 2 mg by k, ये दिया हुआ। That is going to convert to kinetic energy, यानी half m v square, तो एक m कैंसिल हो गया, तो v हो जाएगा इक्वल टू 2m g स्क्वायर बाय k का अंडर। ये v आ। अच्छा ये हो गया बिफोर कोलिजन। सर 4 होगा, सर रूट 4 आएगा, हाँ सर वो 4 हो जाएगा, 4 आएगा, 4 होएगा सर, 4mg स्क्वायर बाय के। हाँ 4 होगा, ठीक है ना। तो ये v आ गया। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो आफ्टर कोलिजन तो हिग्स एंड स्टिक्स है, तो सेम मास है तो आधा हो जाएगा, आधा मतलब हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m g स्क्वायर बाय k। उसके बाद हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन इसमें एनर्जीज क्या क्या आएंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है ना वो यहाँ पे कहीं पे, तो स्प्रिंग ऑलरेडी mg बाय k डिप्रेस्ड है, तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यानी इनिशियल, अब मैं लगा रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाता हूं अब, तो क्या आएगा,
हाफ के mg बाई के का होल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इनिशियल ये हो गया तुम्हारा जो है इनिशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना, ये प्लस हाफ, मैं इसी को रेफरेंस ले रहा हूं सो दैट पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक है ना, हाफ एम और वी स्क्वायर हो जाएगा एम जी स्क्वायर बाई के प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल टू हाफ के एच प्लस एम जी बाई के का होल स्क्वायर। ये स्प्रिंग एनर्जी है, ठीक है ना, ये हो गया स्प्रिंग एनर्जी। और कोई एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी खत्म है यहाँ पे, नहीं, माइनस एम जी एच, या दैट इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। ध्यान रखना इसमें स्प्रिंग इनिशियली इलोंगेटेड था तो उसको अनदेखा नहीं कर सकते, वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि इनिशियली स्प्रिंग के पास भी एनर्जी था, ठीक है ना। तो GH नहीं आएगा, हाँ 2 mgh, ठीक है ना। तो आई थिंक और क्या आएगा ना, इधर का कैलकुलेशन करो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 की प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, तो थोड़ा कैलकुलेशन चेक करते रहना, 3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 mgh प्लस हाफ के एच स्क्वायर प्लस 2 mgh बाई के का हाफ, पहले एक के कैंसिल हो जाएगा तो प्लस mgh, है ना, के तो कैंसिल हो जाएगा, mgh बाई के होता है 2 mgh बाई के, और क्या आ रहा है माइनस प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 की प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 के माइनस 2 mgh। ये हो गया कंप्लीट इक्वेशन। आई थिंक कुछ चीजें तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं, जुड़ जाएंगे। एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 के एक तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के है, तो मैं एक काम करता हूँ के 2 के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, 2 के से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट केस क्या आएगा, जरूरत नहीं, वैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो के एच स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 mgh यानी माइनस 8 mgh, ठीक है, और माइनस 6 mgh, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 6, और एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। एक बार इक्वेशन चेक कर लेना, ठीक है ना, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी गेट। they have asked कि after collision velocity and energy की equation एक्चुअली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई देखो m तो रेस्ट पे है और m आया तो m इंटू यू इज इक्वल टू 2m इंटू वी, ये आया तो अकेला, जा रहा है दोनों मिलके, तो यानी m इंटू यू मतलब अंडर रूट ऑफ 2gh, तो वो सब कर लिया, है ना, ये वाला जो भी है, मतलब हाँ यही वाला mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से v आ गया, और उसके बाद देखो v को आधा कर दिया, देखो 4 था, 4 को गायब कर दिया, क्यों, वो एक्चुअली 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, और जब दोनों कंबाइन होकर चल रहा है तो आधा कर दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ही आता। आफ्टर कोलिजन से मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ, कि प्रॉब्लम क्या ना, तो जो कोलिजन वाला पार्ट है वो इनइलास्टिक है, तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ तक का
एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बीच में ऐसे कोलिजन हो रखा है जहां पे एनर्जी लॉस हुआ है। इसलिए मैंने क्या किया, वो एनर्जी लॉस को साइड कर दिया। कैसे? मैं कोलिजन के ठीक बाद से मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया, से लेके नीचे, यानी यहां से लेके नीचे तक। आई थिंक दैट वुड मेक इट कन्वीनियंट आल्सो एंड एप्रोप्रिएट आल्सो। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम अगर सोल्यूशन निकालना है तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, -b, है ना, तो यानी 6mg प्लस माइनस √b², यानी 36m²g², ठीक है, -4ac, यानी प्लस 8 by 2a, 2a means 2k, plus 8m², ये k तो कैंसिल हो गया, प्लस 8m² g²। आई थिंक 36 और 8 मिलकर हो गए 44, तो यानी 2√11, 2 से कैंसिल कर लो, यानी 3mg प्लस माइनस mg कॉमन आ जाएगा, यानी mg by k कॉमन आ जाएगा बेसिकली, mg by k into 3, माइनस वाला तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादा आ रहा है, तो प्लस √11 इज व्हाट यू गेट। ये अच्छा, ठीक है। ये mg हाफ के mg by k क्यों आया? हाफ के mg by k का होल स्क्वायर एनर्जी कंजर्वेशन में। के था ना इधर 2a वाला। सर एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। आई एम नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन। सर आपने जो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखी है उसमें मेरे को पूछना है सर, वो हाफ एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन तो यहाँ लिखा है। हाँ बोलो। सर ये हाफ के mg by k कैसे आया? अच्छा अच्छा, वो देखो, ये स्प्रिंग का ओरिजिनल लिंक यहाँ पे था, जब m तुमने ऑलरेडी चढ़ा दी, ये m अलग है, ये m अलग है, तो ये स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, तो वो भी एनर्जी में तो चाहिए होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग जीरो एनर्जी से स्टार्ट नहीं कर रहा है, स्प्रिंग ऑलरेडी थोड़ा कंप्रेस्ड है। कितना कंप्रेस्ड है? mg by k, इस चक्कर में लिखना पड़ा, ठीक है ना। और भी कुछ है तो देख लो। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गार्ड अ लिटिल बिट, अटेंडेंस पे लेना है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं फटाफट देख लेता हूँ अटेंडेंस। और अगर कोई क्वेरी है तो देख लो एक बार फटाफट। चलो, हाँ, तो लाइक एनी क्वेरी इन दिस। एक मैसेज आया, देख लेते हो जरा क्या है। -2mgh 2 बार क्यों आया है? अच्छा, मैंने कुछ गलती किया क्या? 2 बार बोला, गलती किया कुछ? शायद गलती किया लग रहा है, नहीं शायद 2 बार ऐड कर दिया, क्योंकि एक ही बार होगा ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में टोटल 4 आने चाहिए, तो 5 आ गए। हाँ, ये ना गलती हुआ है कि ये -2mgs मैंने पहले भी लिखा, बाद में भी लिखा, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन में गलती हुआ है। चलो कोई नहीं, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा
बी स्क्वायर 4 होगा, बी स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 AC। तो चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 12 तो मतलब निकल कर आई थिंक शायद ये √3 आ रहा है शायद। चलो एनीवे आई थिंक दोस माइनर मॉडिफिकेशन यू कैन डू नाउ। ठीक है, एक बार चेंज कर लो आंसर, आई थिंक थोड़ा सा चेंज होगा। देव में से कि mg/k क्यों 2mg/k होना चाहिए ना, ये वाला, ये mg/k नहीं, वो तो इसलिए ना क्योंकि देखो इसको अभी भूल जाओ, ये मास स्टेशनरी है, यानी इसका जो वेट है ना mg वो बैलेंस्ड है kx से, तो यानी k अगर इसको x0 मानो तो kx0 इज इक्वल टू mg, तो x0 हो गया mg/k, तो वो वाला लिखा है x0 यहाँ पे, ये इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग है which is equal to mg/k, not 2mg/k और mg/2, mg/k ही है और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलो एनीवे तो ये थोड़ा सा चेंज कर लो क्योंकि मैंने गलती से 2 बार -2mg वाला टर्म जो है ना मैंने 2 बार लिख दिया, तो एक बार वो अपने आप चेंज कर लो। ठीक है ना, आर्यंत इज वेरी राइट एंड दैट इज mg/k इज कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिल्कुल सही है और वही मैंने लिखा है ये सर, ये वाला, ये वाला कंडीशन इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है राइट, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। टुमारो विल प्रोसीड फर्दर फ्रॉम दिस एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द फैग एंड ऑफ द चैप्टर, so maybe we tomorrow by tomorrow hopefully we can wind it up and then begin a little bit of the next chapter's journey, क्योंकि थोड़ा सा next chapter का पार्ट भी हम लोगों के सिलेबस। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही, we'll carry on next class। okay, thank you बेटे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खाना खाते तो 100 तेरी क्लास आज मैं अटेंड करती हूँ।